Good morning, friends. In today's lecture, we are going to continue with Unit 6, which we have started in the previous lecture. पिछले क्लास में we have seen a concept of a free consent. Under that, we have covered the first part, that is a coercion. Before starting with next part under free consent, that is undue influence, we'll first revise what we have done in the previous lecture. In the previous lecture, we have seen that free consent is divided in two parts. First is a consensus ad idem. Consensus ad idem, that is nothing but similarity of mind. That is similarity of mind. And second part is consent should be free, that is it should be free from five items. First is coercion, second is undue influence, third is misrepresentation, fourth is fraud, and last one is mistake. We have seen that first four cases, that is coercion, undue influence, fraud के केस में the contract is voidable, whereas last case में it will be either void or it will be valid. We'll see that in detail later on. So this was what we have covered. Similarity of mind का meaning क्या है कि agreeing on the same thing in the same sense. There should not be any kind of a mistake as to the identity of the person, or there should not be any kind of an ambiguity. There should not be any kind of a confusion. That is called as a consensus ad idem, similarity of mind. और second part में अपन ने क्या देखा? Second part में was it should be free from coercion, undue influence, misrepresentation, fraud and mistake. In the previous lecture we have covered with a coercion. कोएर्जन में अपन ने क्या देखा कि कोई भी तरीके की जबरदस्ती नहीं हो सकता है. Coercion has been defined as what? It is defined as someone should answer this coercion. It is what? Committing or threatening to commit any act which is forbidden by the Indian Penal Code. That was the first part of coercion. And second part was detaining or threatening to detain property or property documents. And what is an intention to do all this is to force the other party to enter into any kind of an agreement. यानी किसी के ऊपर फिजिकल प्रेशर यूज करके आप अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करवाते हो तो दैट इज कॉल्ड एज ऑन अकाउंट ऑफ कोएर्जन. वी हैव सीन दैट कि ये कोएर्जन जरूरी नहीं है कि जिससे आपको एग्रीमेंट साइन करवाना है उसी के ऊपर आप ये फोर्स यूज करोगे. You can use that force directly on that particular person with whom you want to enter into any agreement, या फिर आप indirect pressure उसके ऊपर डालेंगे. मैंने आपको बताया कि आप उसके बच्चों को या उसके सिबलिंग्स को या उसके वाइफ को किडनैप कर लोगे और उसके ऊपर प्रेशर, इनडायरेक्ट प्रेशर डालोगे. आप खुद करोगे ये सब या फिर आप किसी और से करवाओगे. तो ये सब चीजें काय में कवर होती है कोएर्जन. एंड वी हैव सीन दैट कि अगर आप इस तरीके की जबरदस्ती किसी के ऊपर करते हो और उससे एग्रीमेंट साइन करवाते हो तो दैट एग्रीमेंट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ वैलिड एग्रीमेंट. इट विल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव पार्टी. मगर वी हैव सीन दैट कि एग्रीव पार्टी के पास ये ऑप्शन है कि he can either avoid the contract
और अदरवाइज ही कैन इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट, यानी अगर उसको लगता है कि उसके वो एडवांटेजेस है, वो कॉन्ट्रैक्ट उसके बेनिफिट पोजीशन पे है, तो वो इन्फोर्स भी कर सकता है। वो सामने वाले पार्टी को बोल सकता है कि आपने जो वादा किया है आपको देना पड़ेगा, और ही इज एंटाइटल्ड टू गो अगेंस्ट दैट पार्टिकल हु हैज यूज्ड दिस फोर्स to enforce the contract. He can go to the court of law and ask the other party to carry out the contract, but the other party who has used the force cannot go to the court of law. So it is voidable at the option of aggrieved party. Aggrieved party can avoid the contract, or he is also entitled to enforce the contract if he finds that contract benefit for him. So this was under coercion. Today we are going to start with second part of free consent, and that is अनड्यू इन्फ्लुएंस। फर्स्ट विल सी, एक ओवरव्यू में दे देता हूं अनड्यू इन्फ्लुएंस का। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मीनिंग क्या है कि अनड्यू यानी अनफेयर, और इन्फ्लुएंस यानी आपका डोमिनेशन किसी के ऊपर, तो दैट इज कॉल्ड एज एन अनड्यू इन्फ्लुएंस। अगर कोई पार्टी, दो पार्टीज में अगर एक पार्टी डोमिनेंट पोजीशन में है और वो उस पोजीशन का अनड्यू एडवांटेज लेने की कोशिश करता है, तो दैट इज कॉल्ड एज एन अनड्यू इन्फ्लुएंस। और उस अनड्यू एडवांटेज से अगर वो सामने वाले पार्टी को कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाता है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट ऑन अकाउंट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। विल कॉल इट एज कि देयर इज नो फ्री कंसेंट ऑन अकाउंट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। Just we'll see the definition and we'll try to understand this concept in detail. What they have given. Section 16(1) defines undue influence as follows. A contract is said to be induced by undue influence where the relationship subsisting between the parties are such that one of the party is in a position to dominate the will of other. One of the person is in a position to dominate the will of the other. जैसा सिंपल एग्जाम्पल है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का। एम्प्लॉयर विल बी ऑलवेज इन अपरेंट पोजीशन, यानी वो डोमिनेंट पोजीशन में रहेगा, और एम्प्लॉय को उसकी बात सुनना पड़ेगी इवन दो एम्प्लॉय को वो एग्रीएबल नहीं है। वाई द एम्प्लॉय हैज टू लिसन टू द वॉइस ऑफ एन एम्प्लॉयर इज बिकॉज ही वांट टू सेव हिज जॉब। तो यहाँ पे अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का पोजीशन देखेंगे तो एम्प्लॉयर इज इन अ डोमिनेंट पोजीशन, he is entitled to dominate the will of employee. Student and a teacher, इस पोजीशन में टीचर इज इन अ डोमिनेंट पोजीशन टू स्टूडेंट। हालांकि आजकल के स्टूडेंट इज इन अ डोमिनेंट पोजीशन, बट एज फार एज अ नॉर्मल प्रैक्टिस इज कंसर्न, अब आपके और मेरे बीच में रिलेशनशिप देखेंगे तो यू आर इन अ डोमिनेंट पोजीशन, आई डोंट डोमिनेट एनी टाइम, बट इन अ नॉर्मल कोर्स इट इज ऑलवेज सीन दैट कि टीचर विल बी इन अ डोमिनेंट पोजीशन and he is going to dominate the will of the student. So these are some of the relationship where you will find that कि एक particular बंदा दूसरे पार्टी को dominate करेगा, तो उन लोगों में इस तरीके के रिलेशन ही होंगे जहां पे it is presumed कि one party will dominate the will of another. और आगे क्या बोल रहा है, he uses the position to obtain the unfair advantage. तो second important point क्या है कि एक पार्टी हालांकि वो डोमिनेंट पोजीशन में है, वो डोमिनेंट पोजीशन का अनड्यू एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा है। अगर वो डोमिनेंट पोजीशन में है लेकिन वो अनड्यू एडवांटेज लेने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो देन यू कैन नॉट कॉल इट एज एन अनड्यू इन्फ्लुएंस। जैसे कि स्टूडेंट एंड टीचर के बीच में अगर आप देखेंगे तो टीचर इज इन अ डोमिनेंट पोजीशन, ही इज गोइंग टू डोमिनेट द विल ऑफ द स्टूडेंट। जैसे कि अपने बैच में एक बच्चा बहुत बदमाश है और उसको मैंने बोला कि यू आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग एंड आई वांट यू टू कम आउट विद द फ्लाइंग कलर्स, आई वांट यू टू पास द एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, लेकिन आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हो, तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस का चैप्टर में जितने क्वेश्चन एंड आंसर्स है आपको 100 टाइम्स लिख के मुझे बताना है। तो यहाँ पे आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी क्योंकि मैं बोल रहा हूं, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आई एम इन अ डोमिनेंट पोजीशन और मैं आपको डोमिनेट कर रहा हूं, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन यहां पे मैं आपको 100 टाइम्स लिखने के लिए बोल रहा हूं, तो इसमें मेरा कोई एडवांटेज नहीं है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, ओनली फॉर योर एडवांटेज। तो हियर तो नो डाउट आई एम इन अ डोमिनेंट पोजीशन, बट आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक द अनड्यू एडवांटेज ऑफ दैट, तो दिस कैन नॉट बी कॉल्ड एज एन अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस कब आएगा कि दो चीज जरूरी है। पहला चीज कि एक पार्टी डोमिनेंट पोजीशन में होना चाहिए
वो दूसरे पार्टी के विल को डोमिनेट, इच्छा को डोमिनेट करेगा। और दूसरा, वो डोमिनेशन क्यों करेगा? फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग एन अनड्यू एडवांटेज फॉर हिमसेल्फ, खुद के लिए अनफेयर एडवांटेज लेने की कोशिश करेगा। तो ये केस में यू कैन कॉल इट एज एन अनड्यू इन्फ्लुएंस। अगर वो खुद के लिए एडवांटेज लेने की कोशिश नहीं करता है, अनफेयर एडवांटेज लेने की कोशिश नहीं करता है, दो ही इज इन अ डोमिनेंट पोजीशन, बट इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज एन अनड्यू इन्फ्लुएंस। व्हाट इट फर्दर सेज, the person is deemed to be in a position to dominate the will of another where he holds a real or apparent authority over the other. Real या apparent authority, real यानी दिख के आ रहा है, apparent यानी indirect authority, जो hidden authority है सामने वाले के ऊपर। Example, the relationship between the master and the servant, police officer and the accused. मास्टर एंड द सर्वेंट में इट इज अ रियल डोमिनेशन, यू कैन सिंपली सी टू इट के मास्टर विल ऑलवेज बी इन अ डोमिनेंट पोजीशन ओवर अ सर्वेंट। तो यहाँ पे यू कैन नॉट से दैट के सर्वेंट इज डोमिनेटिंग मास्टर, मास्टर विल डोमिनेट अ सर्वेंट। एंड सेकेंड वन इज के पुलिस वाला और एक चोर है, तो यू कैन ऑलवेज से दैट के पुलिस वाला विल ऑलवेज बी इन अ डोमिनेंट पोजीशन और चोर जो है, वो थीफ जो है, उसको पुलिस वाले की बात सुननी पड़ेगी। Where he stands in a fiduciary relationship. Fiduciary relationship is like where two people stand in a relationship of trust. दो लोग एक दूसरे पे जो ट्रस्ट रखते हो, तो दैट इज कॉल्ड एज अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। जैसे कि आप मरीज हो, यू आर ए पेशेंट, यू गो टू अ डॉक्टर, आप बोलते हो कि ये मेरा फैमिली डॉक्टर है। वाई यू कॉल हिम एज अ फैमिली डॉक्टर? बिकॉज आपको उस डॉक्टर पे भरोसा है कि वो जो भी बोलेगा आपके अच्छाई के लिए बोलेगा, आपके फेयर एडवांटेज के लिए बोलेगा। तो डॉक्टर और पेशेंट, यू कैन कॉल इट एज अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। हस्बैंड एंड वाइफ, you can call it as a relationship of trust, fiduciary relationship. So what it says, fiduciary relationship means a relationship of mutual trust and confidence. Such a relationship is supposed to exist in the following cases, that is father and a son, guardian and a ward, solicitor and a client. Solicitor and a client is nothing but advocate and a client, doctor and a patient, guru, that is spiritual advisor and a disciple, trustee and a beneficiary, etc. So these kind of a relationship will always will also be called as a fiduciary relationship, where एक पार्टी को दूसरे पार्टी पे भरोसा है। तो इस केस में भी एक पार्टी डोमिनेंट पोजीशन में रहेगा और दूसरे पार्टी को उसकी बात सुननी पड़ेगी। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, डॉक्टर एंड अ पेशेंट। तो यहाँ पे देयर इज अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप बिटवीन अ डॉक्टर एंड अ पेशेंट। डॉक्टर जो बोलेगा पेशेंट वो सुनेगा, क्योंकि पेशेंट को पता है कि डॉक्टर जो भी बोलेगा वो उसके बेहतरी के लिए बोलेगा, उसके हेल्थ को सुधारने के लिए बोलेगा। लेकिन जब अगर ये डॉक्टर खुद के एडवांटेज के लिए अगर पेशेंट को कुछ एडवाइस देता है, तो देन यू कैन कॉल इट इज देयर इज एन अनड्यू इन्फ्लुएंस। बराबर, जैसे कि वी कैन सी दैट के सम ऑफ द डॉक्टर्स जस्ट गिव अ प्रिस्क्रिप्शंस, जो उसमें बहुत सारे टैबलेट्स लिखे रहते हैं जो उसके हेल्थ से रिलेटेड नहीं रहते हैं। दे आर जनरली विटामिन्स, दे जस्ट गिव टू गेट द बिजनेस, टू गेट मनी। तो दिस इज, यू कैन कॉल इट एज हियर के डॉक्टर पेशेंट से अनफेयर एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा है, तो देयर यू कैन कॉल इट एज एन अनड्यू इन्फ्लुएंस। सिमिलरली सॉलिसिटर एंड अ क्लाइंट, एडवोकेट एंड अ क्लाइंट, वी कैन सी दैट के अपने सीनियर्स जनरली बोलते हैं कि भगवान किसी को भी एक हॉस्पिटल और दूसरा पुलिस थाने का कभी भी दरवाजा ना दिखाए, एडवोकेट के पास जाने की कभी जरूरत ना पड़े, अपने सीनियर जनरली बोलते हैं। वाई दे कॉल के एडवोकेट के पास जाने की जरूरत कभी लाइफ में आपको ना पड़े, क्योंकि जनरली दे से दैट सम ऑफ द एडवोकेट्स ट्राई टू गेट अनड्यू एडवांटेज ओवर द क्लाइंट। दे विल जस्ट prolong the cases, सामने वाले के साथ मिलके they will try to prolong the cases and they will try to earn the money from that. So this is called as an undue advantage. Similarly, a chartered accountant like myself and some of my client, तो मैं उनको जो भी एडवाइस दूंगा तो वो क्लाइंट मेरे पास क्यों आता है कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट विल गिव अ राइट एडवाइस। लेकिन अगर मैं I am trying to earn more and more money from that particular client, just I mean giving them a unfair advice, उनको एडवाइस बराबर ना देके, उनका गलत रिटर्न भर के,
मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अर्न द मैक्सिमम मनी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर क्लाइंट। तो यहाँ पे क्या होगा, दो देयर इज अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप बिटवीन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड क्लाइंट, बट हियर चार्टर्ड अकाउंटेंट इज ट्राइंग टू मेक द undue advantage, trying to make the unfair advantage over the other. So this is called as a fiduciary relationship. Third one is where he makes a contract with a person whose mental capacity is temporarily or permanently affected by reason of age, illness or mental or bodily distress. Example, old illiterate person. कभी कभी क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन जो होता है बेचारा बहुत बीमार होता है, ओल्ड एज होता है, तो वो ओल्ड एज पर्सन जो है एक डेड बेड पे है एंड जो उसकी देखभाल कर रहा है। तो अब यहाँ पे जस्ट ट्राई टू इमेजिन कि एक पर्सन एक बीमार आदमी की देखभाल कर रहा है, तो इस केस में जो देखभाल कर रहा है दैट पर्टिकुलर पर्सन विल बी इन अ डोमिनेंट पोजीशन ओवर दैट अदर पार्टी। तो वो जो बोलेगा वो बंदे को सुनना पड़ेगा, जो बीमार है उसको उसकी बात सुनना पड़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये मेरी देखभाल कर रहा है और इसकी बात अगर मैं नहीं सुनूंगा तो ये मेरी देखभाल नहीं करेगा। तो उस पेशेंट को, उस वार्ड बॉय, उस पर्सन की बात सुनना पड़ेगा। तो यहाँ पे डोमिनेंट पोजीशन में कौन है, जो उसकी देखभाल कर रहा है। लेकिन जो उसकी देखभाल कर रहा है अगर वो उसके खुद के एडवांटेज के लिए उसको कुछ एडवाइस देता है या उससे कुछ काम करवाता है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज एन अनड्यू इन्फ्लुएंस। What it further says, it is also observed that for proving the use of undue influence, both the element mentioned above, namely other party was in a position to dominate his will and the transaction was unfair one, must be established. यानी अगर सामने वाला पार्टी कोर्ट में जाके ये बोलता है कि मैंने ये एग्रीमेंट अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस साइन किया है, एग्री किया है, तो ये प्रूफ करना पड़ेगा कि अनड्यू एडवांटेज किस तरीके से हुआ है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, अनड्यू एडवांटेज में दो चीज जरूरी है। फर्स्ट वन पार्टी शुड बी इन अ डोमिनेंट पोजीशन ओवर द विल ऑफ अदर। एक पार्टी एक हायर पोजीशन में होना चाहिए, दूसरा लोअर पोजीशन में होना चाहिए, एंड वन पार्टी शुड डोमिनेट द विल। यानी क्या होना चाहिए यहाँ पे कि ऐसी पोजीशन आपको स्टैब्लिश करनी पड़ेगी, प्रूफ करना पड़ेगी कि सामने वाला पार्टी डोमिनेंट पोजीशन में था, और दूसरा आपको ये भी प्रूफ करना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर पर्सन ने अनफेयर एडवांटेज लेने की कोशिश किया है वो, या फिर वो अनफेयर एडवांटेज ले रहा है। तो ये दो चीज यू विल हैव टू प्रूव इन ऑर्डर टू से दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या चीज जरूरी है, पहला तो डोमिनेशन, that means one party should be in a dominant position over the will of other, and second one is he should try to use that dominant position in order to obtain an unfair advantage. अगर वो unfair advantage लेने की कोशिश नहीं कर रहा है, हालांकि dominant position में है, लेकिन वो unfair advantage अगर लेने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो then you cannot call it as an undue influence। जैसा मैंने यहाँ बताया स्टूडेंट एंड टीचर, बाज वक्त टीचर स्टूडेंट को बहुत चिल्लाता है, डांटता है, तो यहाँ पे नो डाउट स्टूडेंट को टीचर की बात सुनना है, लेकिन यहाँ पे वो इसको क्यों डांट रहा है, क्योंकि वो डोमिनेंट पोजीशन में है। लेकिन क्या वो डोमिनेंट पोजीशन का अनड्यू एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा है? नहीं, वो अनड्यू एडवांटेज लेने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो हियर यू कैन नॉट से दैट कि देयर इज एन अनड्यू इन्फ्लुएंस। व्हाट फर्दर इट सेज, प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी यहाँ पे it is presumed that के one party will always be in a dominant position. You can simply identify के कौन dominant position में। जैसे मैंने अभी आपको बोला स्टूडेंट एंड टीचर, तो यू कैन एवरीवन, जिसको भी अगर आप ये बात बोलेंगे तो यही बोलेगा कि टीचर इज इन डोमिनेंट पोजीशन। तो इट इज प्रिज्यूम, वहां पे इम्प्लाइड है कि ये पार्टी ए एंड बी है और इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि कौन किसका डोमिनेंट पोजीशन में है बोल के। तो यहाँ पे व्हाट आर दोज केसेस, जैसे कि यू कैन कॉल इट एज अ फादर एंड अ सन। तो 99% में अगर फादर इज नॉट ओल्ड एज, तो यू कैन सिंपली से दैट के फादर की एज है 30 इयर्स और वो सन की एज है फॉर एग्जांपल 10 इयर्स, तो यू कैन ऑलवेज से दैट के फादर इज इन अ डोमिनेंट पोजीशन। इट इज प्रिज्यूम के फादर इज इन डोमिनेंट पोजीशन ओवर द विल ऑफ दैट पर्टिकुलर सन। तो व्हाट इट सेज,
master and a servant, father and a son, doctor and a patient, solicitor and a client, or where one of the parties to the contract is old illiterate person, there is no need of proving the use of undue influence by the party whose consent was so caused. So in these cases it is very easy to say that कि ये party is always in a dominant position over the other. वहां पे आपको प्रूव नहीं करना पड़ेगा कि कौन डोमिनेंट पोजीशन, सिर्फ प्रूफ क्या करना पड़ेगा अगर वो अनड्यू इन्फ्लुएंस का केस है कि उसने उसके डोमिनेंट पोजीशन का अनड्यू एडवांटेज लिया है, ये प्रूफ करना पड़ेगा। वहां पे आपको ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि ये डोमिनेंट पोजीशन में और ये डोमिनेंट पोजीशन में नहीं है। इट इज प्रिज्यूम कि दिस पार्टी डॉक्टर एंड अ पेशेंट, तो यू कैन इजीली से दैट कि डॉक्टर विल ऑलवेज बी इन अ डोमिनेंट पोजीशन ओवर पेशेंट। सिर्फ प्रूफ क्या करना है अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस का केस है, तो ये प्रूफ करना पड़ेगा कि सामने वाले पार्टी ने अनड्यू एडवांटेज लेने की कोशिश की है। सेकेंड वन इज merely status of the party is not enough to prove the existence of undue influence in this case. Status of the party is not merely status of the party is enough to prove the existence of undue influence. Status of the party is sufficient. Status यानी with the name you can identify कि कौन dominant position में, name in the sense doctor and a patient, doctor is in a dominant position, solicitor in a client, solicitor that is an advocate is in a dominant position, क्योंकि solicitor and a client के केस में client cannot dominate the advocate, क्लाइंट को वो सब चीजें सुनना पड़ेंगी जो उसका सॉलिसिटर एडवोकेट बोलेगा। तो यहाँ पे इट इज इजीली ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस यू कैन आइडेंटिफाई इफ ही इज अ advocate and he is a client, तो you can simply say that कि he is in a dominant position। तो status से ही आपको ध्यान में आ जाएगा कि कौन dominant position में। There is however no presumption of undue influence in the following cases, लेकिन कुछ कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे presumption नहीं है, वहां पे प्रूफ करना पड़ेगा कि कौन dominant position में। Now you tell me, एक simple example I can give you husband and wife के जस्ट टेल मी हस्बैंड एंड वाइफ में कौन डोमिनेंट पोजीशन में। मेरे केस में, माय केस में वाइफ इज इन अ डोमिनेंट पोजीशन, और 99% जो स्टूडेंट यहाँ पे यू कैन सी दैट कि आपके घर में भी मदर इज इन अ डोमिनेंट पोजीशन, लेकिन कुछ कुछ केसेस में फादर इज ऑल्सो इन अ डोमिनेंट पोजीशन। तो हस्बैंड एंड वाइफ में वहां पे यू कैन नॉट आइडेंटिफाई कि कौन डोमिनेंट पोजीशन में रहेगा। हस्बैंड कैन बी इन अ डोमिनेंट पोजीशन और वाइफ कैन बी इन अ डोमिनेंट पोजीशन। तो उस केस में जहां पे प्रिजम्पशन आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, तो वहां पे आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि कौन डोमिनेंट पोजीशन में। सिमिलरली लैंडलॉर्ड एंड अ टेनेंट, लैंडलॉर्ड एंड अ टेनेंट के बीच में समटाइम लैंडलॉर्ड विल बी इन अ डोमिनेंट पोजीशन, समटाइम टेनेंट। टेनेंट बहुत पुराना है, किराएदार बहुत जूना है, सपोज 50 इयर्स से उसको आपने एक पर्टिकुलर बिल्डिंग किराए पे दी है, तो उस केस में टेनेंट विल डोमिनेट द लैंडलॉर्ड। लेकिन अगर किराएदार नवा है जिसको आपने 11 महीने की लिव इन लाइसेंस पे कोई जगह दी है, तो उस केस में लैंडलॉर्ड डोमिनेट करेगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन कंडीशन टू कंडीशन कि कौन किसको डोमिनेट करेगा। उसी तरह क्रेडिटर्स एंड डेटर्स, सप्लायर एंड द कस्टमर, सप्लायर एंड द कस्टमर में यू कैन नॉट सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ सप्लायर एंड कस्टमर यू कैन से दैट के सप्लायर डोमिनेंट पोजीशन में, डिपेंड ऑन द मार्केट कंडीशन के कौन डोमिनेंट पोजीशन में। तो इस केस में यू विल हैव टू प्रूव, कुछ केसेस में इट इज प्रिज्यूम कि ये एक्स पर्सन विल बी इन अ डोमिनेंट पोजीशन एज कंपेयर टू वाई, लेकिन कुछ कुछ केसेस में प्रिजम्पशन नहीं है, वहां पे आपको प्रूव करना पड़ेगा। आगे क्या बोल रहा है, बर्डन ऑफ प्रूफ एंड रेब्यूटिंग द प्रिजम्पशन। बर्डन ऑफ प्रूफ या रेब्यूटिंग का मीनिंग क्या है कि ऐसा नहीं है, मैं उसको डिनाई कर रहा हूं, तो दैट इज कॉल्ड एज अ रेब्यूटिंग। व्हाट इट सेज, in cases where there is a presumption of undue influence, the burden of proving that the person who was in a position to dominate the will of the another did not use his position to obtain an unfair advantage will lie upon the person who was in a position to dominate the will of other। अगर सपोज कोई केस में मैं बोलता हूं कि मेरे ऊपर अनड्यू एडवांटेज हुआ है, अनड्यू इन्फ्लुएंस से ये पर्टिकुलर पर्सन ने डोमिनेंस यूज किया और मेरे से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है, तो उस केस में किसको प्रूफ करना पड़ेगा? इट सेज दैट के इन केस वेयर देयर इज अ प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, वेयर देयर इज अ प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस अपन ने कौन कौन से केसेस में अपन ने देखा जहां पे
इट इज प्रिज्यूम, कोई दोहराया नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है वहां पे। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ही आपको आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये डोमिनेंट पोजीशन में है, जैसे कि मास्टर एंड द सर्वेंट, फादर एंड द सन, डॉक्टर एंड द पेशेंट, सॉलिसिटर एंड द क्लाइंट, या फिर ओल्ड इलिटरेट और दूसरा पर्टिकुलर पर्सन जो ओल्ड इलिटरेट का ध्यान रख रहा है। तो इस केस में क्या बोला, इन केस where there is a presumption of undue influence, the burden of proving that the person who was in a position to dominate the will of the other did not use his position to obtain an unfair advantage will lie upon the person who was in a position to dominate the will of other। तो वो बोल रहा है जहां पे प्रिजम्पशन है कि ये पार्टी दूसरे पार्टी के विल को डोमिनेट करता है हमेशा, डॉक्टर एंड द पेशेंट, तो किसको प्रूफ करना पड़ेगा, जो डोमिनेंट पोजीशन में है। जैसे कि डॉक्टर एंड द पेशेंट, अगर पेशेंट कोर्ट में केस डॉक्टर के अगेंस्ट में डालता है और बोलता है कि ये पर्टिकुलर डॉक्टर ने मुझसे अनफेयर एडवांटेज लेने की कोशिश किया है, तो डॉक्टर विल हैव टू प्रूव दैट कि दो ही वाज इन अ डोमिनेंट पोजीशन बट ही नेवर ट्राइड टू मेक द अनफेयर एडवांटेज। उसने जो भी पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन दिया या जो भी उस पेशेंट का इलाज किया है वो पेशेंट के हेल्थ को सुधारने के लिए किया है, ना कि खुद के एडवांटेज के लिए किया है। तो जहां पे भी प्रिजम्पशन है वहां पे जो पर्टिकुलर पर्सन डोमिनेंट पोजीशन में उसको प्रूव करना पड़ेगा कि उसने डोमिनेंट पोजीशन का अनड्यू एडवांटेज नहीं लिया है। व्हाट इट सेज फर्दर, एग्जांपल, अ मैन इनफीबल्ड का मतलब है कि जो बहुत बीमार है, वीक है। A man enfeebled by disease or age is induced by B's influence over him as his medical attendant to agree to pay B an unreasonable sum for his professional service. B employs an undue influence. On a petition by A alleging undue influence, it lies on B, the doctor, to prove that the contract was not induced by undue। मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि अगर डॉक्टर और पेशेंट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो गया और पेशेंट अगर कोर्ट में जाता है तो इट इज प्रिज्यूम के डॉक्टर इज इन डोमिनेंट पोजीशन ओवर द विल ऑफ द पेशेंट। तो डॉक्टर को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि उसने अनड्यू एडवांटेज नहीं लिया है। अदरवाइज इफ ही इज नॉट एबल टू प्रूव, अगर डॉक्टर को प्रूव नहीं करते आया तो देन it can be said that the agreement or a contract is on account of an undue influence and it will be voidable at the option of the patient। सेकेंड वन वो क्या बोल रहा है, एन ओल्ड इलिटरेट वुमेन मेड अ गिफ्ट ऑफ ऑलमोस्ट द होल ऑफ द प्रॉपर्टी टू हर नेफ्यू हु वाज मैनेजिंग हर स्टेट on a petition filed by old lady for setting aside a gift deed on the ground of undue influence. The onus, that is a burden, lies on the nephew to prove that the transaction is bona fide, well understood and free from undue influence because undue influence is presumed in this case। अभी वहां पे क्या बोला है, प्रिजम्पशन, और एक केस में ओल्ड पर्सन या ओल्ड इलिटरेट पर्सन और जो उसकी देखभाल कर रहा है। अगर सपोज आई एम वेरी ओल्ड पर्सन, मेरा एज 80 इयर्स है और मेरा सन मेरी देखभाल कर रहा है या मेरा भांजा या मेरा नेफ्यू मेरी देखभाल कर रहा है, तो अगर इन लोगों में डिस्प्यूट होके कोर्ट में जाता है तो नो, इट इज प्रिज्यूम कि आई एम ओल्ड 80 इयर्स ओल्ड और मेरा नेफ्यू जो मेरी देखभाल कर रहा है तो माय नेफ्यू इज इन अ डोमिनेंट पोजीशन, इट इज प्रिज्यूम। मगर अब यहाँ पे मेरे नेफ्यू को प्रूव करना है कि उसने अनफेयर एडवांटेज लेने की कोशिश नहीं किया। इस केस में क्या हो रहा है, एंड ओल्ड इलिटरेट वुमेन की देखभाल नेफ्यू कर रहा है और ओल्ड इलिटरेट वुमेन ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी उस नेफ्यू के नाम पे कर दी और बाद में ओल्ड इलिटरेट वुमेन वेंट टू द कोर्ट ऑफ लॉ एंड सेड दैट कि ये नेफ्यू ने मुझ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस कॉज किया है, यूज किया है। कैसे यूज किया है कि उसने उसके पोजीशन का डोमिनेंस यूज किया और मुझसे मेरी पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम पे करवा ली। Why have done so? Because वो मेरी देखभाल कर रहा था और मैं अगर उसके गिफ्ट डीड से या फिर उसको प्रॉपर्टी उसके नाम पे मैं नहीं करती तो वो मेरी देखभाल नहीं करता था। तो यहाँ पे वो नेफ्यू को प्रूव करना पड़ेगा कि
ओल्ड लेडी ने जो उसके नाम पे प्रॉपर्टी की, उसने जोर जबरदस्ती नहीं करवाई, उसका कोई पोजीशन, जोर जबरदस्ती इन द सेंस उसने उसके ऊपर कोई मेंटल प्रेशर नहीं दिया है, उसने कोई अपने पोजीशन का इस्तेमाल नहीं किया, अनड्यू एडवांटेज लेने की कोशिश नहीं की। यहाँ पे किसको प्रूफ करना पड़ेगा? नेफ्यू को प्रूफ करना पड़ेगा। और अगर नेफ्यू प्रूफ नहीं कर पाया तो देन दैट गिफ्ट डीड विल बी सेट असाइड, यानी उसको डिसमिस किया जाएगा और उस ओल्ड लेडी को उसकी प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी। इफेक्ट क्या होगा अनड्यू इन्फ्लुएंस का? व्हेन द कंसेंट when the consent to an agreement is caused by undue influence, the agreement when consent to an agreement is caused by undue influence, the agreement is a contract voidable at the option of the party whose consent was so caused। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इफेक्ट क्या होगा अगर सामने वाला पार्टी जो डोमिनेंट पोजीशन में वो प्रूव नहीं कर पाया कि उसने अनफेयर एडवांटेज नहीं लिया है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीव पार्टी। एग्रीव पार्टी इस केस में कौन रहेगा? जैसे कि अगर डॉक्टर एंड पेशेंट है और डॉक्टर इज इन अ डोमिनेंट पोजीशन एंड ही ट्राइड टू मेक द अनफेयर एडवांटेज ओवर द विल ऑफ द पेशेंट, तो हियर the contract will be voidable at the option of the patient। contract will be voidable at the option of the aggrieved party, यानी जिसका loss हुआ है। any such contract may be set aside either absolutely or if the party who was entitled to avoid is has received any benefit thereunder upon such terms and conditions that the court may seem just। section 194A very very important। इसमें क्या बोला गया है कि अगर ये केस कोर्ट में गया, यानी एक डोमिनेंट पोजीशन में और उसने उस पोजीशन का अनफेयर एडवांटेज लिया है या नहीं लिया और डिस्प्यूट क्रिएट हो गया और वो केस कोर्ट में गया, तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि दो वहां पे प्रिजम्पशन है कि वन पार्टी इज इन अ डोमिनेंट पोजीशन ओवर द अदर। अगर प्रिजम्पशन नहीं है तो फिर पहले प्रिजम्पशन प्रूफ करना पड़ेगा कि कौन डोमिनेंट पोजीशन में है। लेकिन अगर प्रिजम्पशन एग्जिस्ट है तो वहां पे यू डोंट हैव टू प्रूफ के डोमिनेंट पोजीशन में कौन है। तो अगर केस कोर्ट में गया और एक पार्टी बोलता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस है, दूसरा पार्टी जो डोमिनेंट पोजीशन में वो बोलता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है, तो उस केस में कोर्ट डिसाइड करेगा कि अनफेयर एडवांटेज हुआ है या नहीं हुआ है, और उसके बेसिस पे या तो कोर्ट उस कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड कर देगा या वॉइडेबल करार कर देगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए बोलेगा, या फिर कोर्ट बोलेगा नहीं ये कॉन्ट्रैक्ट में अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है, डोमिनेंस है लेकिन अनफेयर एडवांटेज नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं किया जा सकता। तो इट डिपेंड्स अपॉन कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि मैंने एग्जांपल स्टूडेंट एंड टीचर का दिया। स्टूडेंट अगर टीचर को बोलता है कि यू हैव टू राइट दिस 10 times, तो no doubt it seems that there is an dominance of the teacher over the student, but आप यहाँ कोर्ट में मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर देते हो कि ये सर मेरे साथ ज्यादती कर रहा है, अन्याय कर रहा है और मुझे हर रोज 10 बार लिखने के लिए बोलता है, इसको मेरे से पर्सनल खुन्नस है। अगर आप मेरे खिलाफ कोर्ट में ऐसी कंप्लेंट करते हो तो मैं प्रूफ करूंगा कि सर मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने ये 10 बार इसको होमवर्क इसीलिए दे रहा हूं ताकि ये एग्जामिनेशन में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो, एंड दैट्स द ओनली रीजन मैं इसके ऊपर ये मेरा डोमिनेंस यूज कर रहा हूं, यहाँ पे अनफेयर एडवांटेज लेने की कोशिश नहीं है। तो कोर्ट केस टू केस डिसाइड करेगा कि अनफेयर एडवांटेज हुआ है या नहीं हुआ है। अनफेयर एडवांटेज हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी सेट असाइड, विल बी कैंसल, अदरवाइज that contract will be called as valid। और उसमें कोर्ट देखेगा कि अगर कॉन्ट्रैक्ट सेट असाइड हो गया है, उसको कैंसिल कर दिया है, तो सामने वाले पार्टी ने अगर कोई एडवांटेज लिया है तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि उस पर्टिकुलर अमाउंट को रिटर्न देना है या नहीं देना है। यानी जैसे कि अपन ने कोएर्जन के केस में देखा कि अगर कोएर्जन है और एग्रीव पार्टी कोई एडवांस लेता है तो एडवांस उसको रिटर्न देना पड़ेगा, लेकिन इस केस में वैसा नहीं है। इस केस में बोला गया है कि अगर एग्रीव पार्टी को कुछ बेनिफिट मिला है
तो वो बेनिफिट कोर्ट बोलेगा पूरी तरीके से रिटर्न कर दो, 50% रिटर्न करो या मत रिटर्न करो। तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन कोयर्जन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस में अमाउंट में बी आस्क्ड टू रिटर्न एंटायरली। एग्रीव पार्टी ने कुछ बेनिफिट लिया है तो पूरी तरह रिटर्न देना पड़ेगा, पार्टली रिटर्न देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन कोर्ट डिसीजन। आगे क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल, A money lender advances rupees 1 lakh to B, an agriculturist, and by undue influence induces B to execute a bond for rupees 2 lakh with interest at 6% per month. The court may set the bond aside, ordering B to repay rupees 1 lakh with such interest as may seem just. अब हुआ क्या इस केस में? एक सपोज एक किसान एक लैंडलॉर्ड के पास गया, एंड यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि हु विल बी इन अ डोमिनेंट पोजीशन। मनी लेंडर ने उस किसान को 1 लाख रुपए दिए, लेकिन उसको क्या बोला कि आपको बॉन्ड 2 लाख रुपए का साइन करना पड़ेगा। हालांकि मैं आपको 1 लाख रुपए दे रहा हूं, लेकिन आपको रिटर्न मुझे 2 लाख रुपए देना पड़ेंगे और उस पर ब्याज भी देना पड़ेगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 6% पर मंथ। दैट मीन्स ईयरली इंटरेस्ट विल बी 12 multiplied by 6, that is nothing but 72% per annum interest। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सिंपली मनी लेंडर ने अपने पोजीशन का अनड्यू एडवांटेज लेने की कोशिश किया। दे रहा है 1 लाख लेकिन बॉन्ड साइन करवा रहा है 2 लाख। ये डिस्प्यूट अगर कोर्ट में जाता है तो कोर्ट ऑब्वियसली इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करार देगा, लेकिन जो 1 लाख रुपए उसने लिए वो 1 लाख रुपए रिटर्न देने के लिए बोलेगा। लेकिन इंटरेस्ट रेट जो 72% है उसको कोर्ट डिसाइड करेगा कि मार्केट कंडीशन क्या है, उसके बेसिस पे कितना इंटरेस्ट उस किसान ने उस लैंडलॉर्ड को देना चाहिए। सेक्शन 19 वर्सेस 19A। दिस इज 19A। आई टोल्ड यू 194, नो इट इज 19A। फाइन। नाउ व्हाट इट सेज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सेक्शन 19 एंड 19A? सेक्शन 19 जो है वो रिलेटेड विथ कोयर्जन, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड से, और 19A इज रिलेटेड विथ अनड्यू इन्फ्लुएंस। व्हाट इट सेज, thus it will be noticed that section 19A also declares a contract brought about by undue influence voidable at the option of aggrieved party, just as section 19 so declares in the case of contract brought about by coercion, misrepresentation or fraud। सेक्शन 19 और 19A का डिफरेंस विल सी, लेकिन एक चीज कॉमन है। कॉमन चीज क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीव पार्टी। अब डिफरेंस क्या है, विल सी दिस। द स्पेशल फीचर ऑफ सेक्शन 19 इज दैट व्हाइल इन द केस ऑफ रेसिशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, रेसिशन का मीनिंग है कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट procured by coercion, misrepresentation or fraud, any benefit received by the aggrieved party has to be restored under section 64 of the Contract Act, whereas under section 19A, if the contract procured by undue influence is set aside, the court has a discretion to direct the aggrieved party for refunding the benefit whether in whole or part, or set aside the contract without any direction for refund। section 19 और 19A, सेक्शन 19 कोयर्जन, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड को एप्लीकेबल है, 19 है अनड्यू इन्फ्लुएंस को एप्लीकेबल है। 19 क्या बोलता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट इज ऑन अकाउंट ऑफ कोयर्जन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, अगर एग्रीव पार्टी ने उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई एडवांस या एडवांटेज लिया है, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड होता है तो वो एडवांटेज या एडवांस रिटर्न देना पड़ेगा जिसने उसके ऊपर कोयर्जन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन यूज किया है। लेकिन 19A क्या बोलता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड किया जाता है ऑन अकाउंट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, तो कोर्ट डायरेक्शन देगा एग्रीव पार्टी को कि आपने अगर कोई एडवांटेज लिया है या एडवांस लिया है तो पूरी तरीके से रिफंड दे दो, पार्टली रिफंड दे दो या मत दो, डिपेंडिंग अपॉन कोर्ट डायरेक्शन। कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ सर्कमस्टेंसेस डिसाइड करेगा कि एग्रीव पार्टी को एडवांस पूरी तरीके से रिटर्न देना है या नहीं देना है। उसके बाद एवरी ट्रांजेक्शन वेयर द टर्म्स आर डिसएडवांटेजियस टू वन पार्टी इज नॉट नेसेसरीली इन्फ्लुएंस्ड बाय अनड्यू एडवांटेज।
ये हमेशा जरूरी नहीं है कि अगर किसी पार्टी के लिए कोई पर्टिकुलर फैक्टर अनएडवांटेजेस है, उसके लायक नहीं है, तो सामने वाले पार्टी ने अनफेयर एडवांटेज लेने की कोशिश किया, ये जरूरी नहीं। यानी मेरे लिए डिसएडवांटेज आपके लिए हमेशा एडवांटेज होगा, ये जरूरी नहीं है। जैसे कि टीचर एंड द स्टूडेंट को अगर मैं 10 टाइम्स लिखने के लिए बोल रहा हूँ, कोई होमवर्क दे रहा हूँ और बोल रहा हूँ एक पर्टिकुलर मिस्टर अनिल को कि आपको ये होमवर्क 10 टाइम्स लिखना है, नो डाउट इट इज डिसएडवांटेज फॉर यू, लेकिन क्या वो मेरे एडवांटेज के लिए? आंसर इज नो। आप 10 बार लिख के लाओगे तो मेरा एडवांटेज उसमें कुछ नहीं है। तो हियर आई कैन नॉट से दैट के दिस टू मी। फाइन, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। दूसरा, स्टूडेंट एंड टीचर के बीच में व्हेन यू कैन कॉल इट एज के स्टूडेंट टीचर अनड्यू एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट बहुत वीक है और मैं उसको बोल रहा हूं कि अगर आपको पास होना है तो you will have to give me rupees 1 lakh extra, you will have to give me 50,000 extra. तो here you can say that कि teacher and student में teacher is in a dominant position over the will of the student and teacher here is trying to obtain an undue advantage over the other. तो इस केस में you can call it as कि there is an undue influence. Fine. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमेशा ये जरूरी नहीं रहेगा कि अगर एक पार्टी का डिसएडवांटेज है तो दूसरे पार्टी का वो एडवांटेज होगा। Thus, the mere fact the transaction is hard bargain for one party does not always indicate undue influence. If the parties to such transaction were on the equal footing and the transaction between them was normal commercial transaction done in normal course of business. अभी सपोज मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड हुआ है और मैंने आपको प्रॉमिस दे दिया है, एक्सेप्टेंस दिया है, और उसके बाद मुझे लग रहा है कि यार मैंने प्रॉमिस तो दे दिया, अब मुझे वो डिफिकल्ट हो रहा है कंप्लीट करने के लिए, वो प्रॉमिस अपना एक्सेप्टेंस पूरा करना काफी डिफिकल्ट जा रहा है और वो एक्सेप्टेंस पूरा करने के चक्कर में आई एम इनकरिंग द लॉस। तो हियर यू कैन नॉट से दैट कि देयर इज एन अनड्यू इन्फ्लुएंस। यहाँ पे आपने प्रॉमिस दिया तो आपसे सामने वाले ने प्रॉमिस कोई जबरदस्ती नहीं लिया, आपने खुद होके एक्सेप्टेंस दिया है। आपने एक्सेप्टेंस सोच समझ के देना चाहिए था, आपने एक्सेप्टेंस बिना सोचे समझे दे दिया और अगर अब आपको लग रहा है कि आपके लिए हार्ड बार्गेन हो गया है यानी डिफिकल्ट हो गया है वो पूरा करना, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन एक्शन, ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो हियर इन दिस केस you cannot call it as an undue influence. One question you will refer and try to understand. It has been asked in November 2002. What is that? Anil applies to a banker for a loan at the time when there is a stringency in the money market. The banker declines to make the loan except as unusually high rate of interest. Anil accept the loan on these terms. Whether the contract induced by undue influence decide. क्या question है? You will try to understand. कि यहाँ पे अनिल ने बैंक को अप्लाई किया लोन के लिए, उस वक्त अप्लाई किया जब मार्केट में देयर वाज अ स्ट्रिंजेंसी, यानी मनी मार्केट में बहुत सारा लिक्विडिटी शॉर्टेज था, फंड अवेलेबल्स नहीं थे। तो बैंक ने उस अनिल को बोला कि आपको रेट ज्यादा लगेगा, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम आपको लोन प्रोवाइड कर पाएंगे, नहीं तो नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। तो क्या यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस है? विल सी द आंसर। The banker has not obtained any unfair advantage. Banker has not obtained any unfair advantage. यहाँ पे बैंकर ने कुछ फायदा लेने की कोशिश किया है कि आंसर इज नो। बैंकर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों ज्यादा लगा रहा है? क्योंकि मार्केट कंडीशन ऐसी है जहां पे लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है, मनी मार्केट में प्रॉब्लम है, तो इसीलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लगा रहा है। क्योंकि बैंक को हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिपॉजिट्स लेने पड़ रहे होंगे, इसीलिए वो लोन भी हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट से दे रहा है। Since there is a stringency in the money market, thereby resulting in the increase in the interest rate, since the loan is made by the banker in the ordinary course of business. Ordinary course of business, regular course के अंदर बैंक आपको लोन दे रहा है, हायर रेट क्यों लगा रहा है? क्योंकि उसको हायर रेट पे डिपॉजिट लेना पड़ रहा है। तो ये नॉर्मल कोर्स केस है, इसको अपन अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं बोल सकते। कंक्लूजन, there is no undue influence since as between the parties on equal footing यानी कोई भी dominant position में यहाँ पे नहीं है। You cannot say that कि banker is going to dominate the borrower. The court does not hold a transaction to be unreasonable, unconsignable, that is unreasonably excessive,
merely on the ground of high rate of interest, right? तो इट डिपेंड्स अपॉन कंडीशन टू कंडीशन के अनड्यू इन्फ्लुएंस है या अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है. नाउ just we have covered these two topic in the previous lecture. I have completed with coercion में मैंने आपको बताया कि coercion में physical pressure use होगा, लेकिन undue influence में dominance of the position use होगा. फिर मैंने आपको बताया कि coercion के केस में contract is voidable, undue influence के केस में भी contract is voidable. लेकिन कोएर्जन के केस में अगर एग्रीव पार्टी ने कोई एडवांटेज लिया है तो वो एडवांटेज उसे रिटर्न देना पड़ेगा, लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस में ये जरूरी नहीं है. कोर्ट डिसाइड करेगा कि एडवांटेज रिटर्न देना है या नहीं देना है, पूरा देना है या पार्टली देना है. तो जस्ट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. नेचर ऑफ एक्शन इन द केस ऑफ कोएर्जन. In the case of coercion, it involves the physical force or threat. The aggrieved party is compelled to make the contract. Here it involves a physical force or threat. धमकी, दड़ा धमका के किसी से कॉन्ट्रैक्ट. ऐसा दड़ाना धमकाना अनड्यू इन्फ्लुएंस में नहीं है, कोई भी तरीके की थ्रेटनिंग नहीं है. सिर्फ पोजीशन ऐसी है, जैसे कि माँ और बच्चे में अगर देखते हैं तो माँ ऐसी आग दिखाती है तो बच्चा समझ जाता है कि माँ गुस्से में अपने को ये काम कर लेना है. तो दैट इज वहां पे कोई ऐसा थ्रेटनिंग पोजीशन ऐसी है कि आपको समझ जाना है कि करना क्या है. यहाँ पे क्या हो रहा है कोएर्जन के केस में कि वो आपको धमकी दे रहा है, ऐसा नहीं किया तो ऐसा मैं कर दूंगा, तो दैट इज कॉल्ड एज अ थ्रेटनिंग. या फिजिकल फोर्स, फिजिकल फोर्स यानी आपको किडनैप कर लिया या आपके लव वंस को किडनैप कर लिया और आपसे कोई काम करवा रहा है. अनड्यू इन्फ्लुएंस में इट इन्वॉल्व्स मोरल और मेंटल प्रेशर. मोरल और मेंटल प्रेशर, आपकी पोजीशन ऐसी है कि सामने वाले की बात आपको सुनना पड़ेगा. इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्रिमिनल एक्शन. It involves committing or threatening to commit an act forbidden by Indian Penal Code, detaining or threatening to detain property unlawfully. तो coercion के केस में there is action which is criminal. It involves any act which is punishable under the Indian Penal Code. Already definition में we have seen that के definition of coercion क्या है, committing or threatening to commit any act which is punishable under the Indian Penal Code or which is formidable by the Indian Penal Code, यानी जिसको Indian Penal Code ने मना किया है ऐसी एक्ट. लेकिन यानी कोएर्जन के केस में there is an illegal act, लेकिन undue influence में क्या बोल रहा है, there is no such illegal act is committed or threat is given. undue influence में ऐसा कोई दड़ाना धमकाना नहीं रहेगा. Relationship, it is not necessary that there must be some sort of relationship between the parties. लेकिन undue influence में किसी ना किसी तरीके से रिलेशनशिप रहेगा. रिलेशनशिप आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ब्लड रिलेशन. रिलेशनशिप यानी पेशेंट और डॉक्टर, यहाँ पे डॉक्टर पेशेंट का रिलेशन है, सॉलिसिटर एंड क्लाइंट का रिलेशन है, बराबर. फादर एंड सन, यहाँ पे ब्लड रिलेशन है, लेकिन डॉक्टर एंड पेशेंट के केस में ब्लड रिलेशन नहीं है लेकिन रिलेशन है. तो देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप अंडर द undue इन्फ्लुएंस. कोएर्जन में ऐसा कुछ नहीं है. कोएर्जन में कोई XYZ, अगर मुझे मेरे एरिया में एक बहुत बड़ा आदमी दिख रहा है, मुझे बहुत करोड़पति है, मैंने उसके लड़के को किडनैप कर लिया, तो मेरा और उस करोड़पति आदमी का कोई रिलेशन नहीं है. तो कोएर्जन में कोई रिलेशन जरूरी नहीं है, लेकिन undue इन्फ्लुएंस में देयर हैज टू बी सर्टेन रिलेशन. सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज एब्सोल्युटली नेसेसरी इन द केस ऑफ undue इन्फ्लुएंस. एक्सरसाइज बाय whom? Coercion need not proceed from the promiser nor need it be directed against the promiser. It can be used even by the stranger to the contract. जरूरी नहीं है कोएर्जन के केस में कि अगर मुझे जिससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना है उसी के ऊपर मैं फोर्स यूज करूंगा. मैं किसी थर्ड पार्टी के ऊपर फोर्स यूज करूंगा और आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाऊंगा. जैसे मैंने बोला कि मैंने आपके लड़के को किडनैप कर लिया और कॉन्ट्रैक्ट आपसे साइन करवा रहा हूं, उसी तरह ये भी जरूरी नहीं है कि मैं अगर मुझे आपसे साइन करवाना है तो फोर्स में डायरेक्टली मैं किसी पर्सन को अपॉइंट करूंगा और उसको बोलूंगा कि आप उसके ऊपर फोर्स यूज करो या उसके बच्चे को किडनैप आप करो, मैं इससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता हूं. undue influence is always exercised between the parties to the contract. लेकिन undue influence जरूरी है कि वो जिससे कॉन्ट्रैक्ट आपको साइन करवाना है, जिसको एग्रीमेंट में एंटर करवाना है, उसके ऊपर आप undue influence यूज करो.
Enforceability, the contract is voidable at the option of the party whose consent has been obtained by coercion. Where the consent is induced by undue influence, the contract is either voidable or the court may set aside or enforce it in modified form. तो undue coercion के केस में हमेशा contract is voidable, मगर जरूरी नहीं है कि वो voidable अवॉइड करेगा एग्रीव पार्टी। अगर उसको लगता है कि उसके एडवांटेज पोजीशन में है तो वो कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स भी कर सकता है, लेकिन जनरल रूल क्या है, इट इज voidable। लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस में अगर जो पार्टी को लगता है कि मेरे ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज हुआ है, लेकिन मैं अगर कोर्ट में प्रूफ कर दूं कि मैंने अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज नहीं किया, अनफेयर एडवांटेज नहीं लिया है, तो कोर्ट में सेट असाइड दैट कॉन्ट्रैक्ट। वो कोर्ट बोलेगा कि नहीं, यहाँ पे अनड्यू एडवांटेज नहीं है, या फिर कोर्ट उस कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाइड फॉर्म में करने के लिए बोलेगा। जैसे कि मैंने आपको बोला कि यू हैव टू डू दिस होमवर्क फॉर 50 टाइम्स, तो आपने मेरी कंप्लेंट कोर्ट में कर दी। डोंट कंप्लेंट, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ, कि अगर आपने मेरी कंप्लेंट कोर्ट में कर दी तो कोर्ट को लगेगा कि नहीं 50 टाइम्स बहुत ज्यादा हो रहा है, 10 टाइम्स इज ओके। तो यहाँ पे क्या किया, कोर्ट ने उस एग्रीमेंट को मॉडिफाई कर दिया। यहाँ पे क्या बोल रहा है, पोजीशन ऑफ द बेनिफिट रिसीव, मैंने बोला है कि 19 और 19A एप्लीकेबल है। 19 में क्या बोला गया है कि कोएर्जन के केस में अगर एग्रीव पार्टी ने कोई बेनिफिट लिया है तो बेनिफिट रिटर्न देना पड़ेगा, लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस में कोर्ट डिसाइड करेगा कि बेनिफिट रिटर्न देना है, कितना देना है, पूरा देना है, नहीं देना है, 50% देना है। In case of coercion, where the contract is rescinded by the aggrieved party as per section 64, any benefit received has to be restored back to the other party. In the case of undue influence, the court has the discretion to direct the aggrieved party to return the benefit in whole or in part, or not to give such direction. So this is a case that has been covered under undue influence. Hope you have understood the provisions of undue influence. तो undue influence में क्या है कि two things are at most necessary under undue influence. कि one party should be in a dominant position over the will of the other. In some of the cases, it is understood कि who will be in a dominant position. In some of the cases, party will have to prove कि who was in a dominant position. Second important point of undue influence is कि the one who is in a dominant position should try to use the unfair advantage. If he is not trying to make use of his position to obtain an unfair advantage, then you cannot call it as an undue influence. तो दो चीजें undue influence में जरूरी क्या है कि one party should be in a dominant position over the will of the other, and second important condition is the one who is in a dominant position should try to obtain the unfair advantage. If these two things is proved, in that circumstances court may either declare that contract as a voidable or it will take the decision depending upon the circumstances of the case. Hope you have enjoyed the session. If you have any doubt, please feel free to ask the queries. Bye everyone.